Hello friends, welcome back to my channel. In today's session, we will learn electric potential at a point due to a point charge. That means here we will calculate the electric potential at any point in the electric field of a point charge. So let's see how we will calculate the electric potential at any point in the electric field of a point charge. So here first we will calculate the work needed to bring a small test charge from infinity to any point in the electric field of a point charge, and then we will find the ratio of the work needed to bring the small test charge from infinity to that point to the small test charge, and in this way we get the electric potential at a point due to a point charge. So friends, let's see the calculation of electric potential. So friends, suppose this is a point charge q and there is a point A. Here we have to find the electric potential due to this point charge q. For this, let us assume that there is a small test charge q naught which is placed at point A, and due to this point charge q, the force acting on the test charge q naught will be given by vector F is equal to q naught vector E. Here vector E is the electric field intensity at point P due to this point charge q. We displace this test charge at another point B, where this point is B, in the direction opposite to the force acting on the test charge q naught, and suppose this distance is dr, and let's join this point, and here electric field is acting in this direction and the force on this test charge q naught is also in this direction, and if we displace this q charge q naught from point A to point B at a distance dr, then work needed, your work done in bringing the test charge from point A to point B is suppose dw, then dw is equal to minus f dot dr. अब यहाँ माइनस हम इसलिए लिए क्योंकि पॉइंट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसका डिस्प्लेसमेंट लगने वाला फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस कारण से dw निगेटिव साइन में आएगी. अब f की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर. तो फ्रेंड्स, अब हमें टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क हमें कैलकुलेट करनी है. तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लेकर, तो हमें इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में किया गया वर्क मिल जाएगा. एंड सपोज द वर्क नीडेड टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट ए इज सपोज w infinite to r, and this will be equal to minus integration of q naught e dot dr, and here limit will be from infinite to r. And what is r? Here r is the distance of point A from point charge q, that means r यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और dr दोनों के बीच की एंगल 0 है, देयरफॉर हियर वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ q naught e dr और लिमिट इनफाइनाइट टू r. बट सिंस E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं. इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लें और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये ई की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो आइए, हमारा वर्क क्या हो जाएगा,
W इन्फिनिटी टू R इज इक्वल टू माइनस, यहाँ हम देखते हैं ये क्यू नाट, जो ये क्यू नाट है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस क्यू नाट बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन इसकी लिमिट होगी इनफाइनाइट टू R, और ई की वैल्यू हम पुट करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान R स्क्वायर इंटू डी आर। फिर आइए हम इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करने से पहले हम देखते हैं इस इक्वेशन में, इंटीग्रेशन के अंदर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू दिस इज अ कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और हमारा डी आर अपन R स्क्वायर ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। तो आइए हम देखें ये क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू नाट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू R एंड लिमिट विल बी इनफाइनाइट टू R। तो ये हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ये हो जाता है माइनस क्यू नाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी r टू द पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 एंड इट्स लिमिट विल बी इनफाइनाइट टू R। तो फ्रेंड्स ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं और लिमिट पुट करेंगे फिर, तो ये क्या आएगा वो देख लें, क्यू नाट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट को हम यदि सॉल्व करें तो ये आएगा ये माइनस साइन, और फिर ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ से माइनस साइन हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/r और इन्फिनिटी टू R। अब लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, क्यू नाट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करेंगे तो -1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो यहाँ फ्रेंड्स जो सेकेंड टर्म्स है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये फर्स्ट टर्म है -1/r और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो W इन्फिनिटी टू R अर्थात जो टेस्ट चार्ज है क्यू नाट को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क नीड होगी उसकी वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए, और ये वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नाट अपान R। अब फ्रेंड्स जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहता है, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क की ज़रूरत पड़ती है और उसी वर्क को हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ हमने टेस्ट चार्ज क्यू नाट को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य हमने निकाल लिया। अब इस वर्क को यदि टेस्ट चार्ज क्यू नाट से डिवाइड कर दें देन हमें मिल जाएगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य, और वही पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। तो फ्रेंड्स सपोज VA is the electric potential at point A, then VA is equal to work infinity to R upon Q naught, and जब वर्क इन्फिनिटी टू R इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और Q नाट से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, और यही पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, और इसकी यूनिट होगी वोल्ट। फ्रेंड्स यदि वहाँ पे वैक्यूम हो पॉइंट चार्ज और पॉइंट ए के मध्य तो हमारा ये फार्मूला आएगा, लेकिन वहाँ पे कोई मीडियम हो जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो तो उस कंडीशन में ये VA की वैल्यू क्या होगी, उस कंडीशन में ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई R वोल्ट हो जाएगी। तो आपकी कंडीशन में जब पॉइंट चार्ज Q और पॉइंट ए के बीच में कोई मीडियम हो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो तो उस कंडीशन में VA विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई R और ये वोल्ट में। तो फ्रेंड्स ये आपकी वैल्यू दिस इज इन ASI सिस्टम, बट इन केस ऑफ CGS सिस्टम what will be the electric potential at point P? Let us see. In case of CGS system, electric potential at point P will be equal to Q by R is that volt.
इज दैट वोल्ट। यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू CGS सिस्टम में वैक्यूम या एयर के लिए 1 हो जाती है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन CGS सिस्टम। अब यदि जो पॉइंट चार्ज Q लिए हैं उसकी जगह में नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, दैट मीन्स यहाँ पर हम -Q लेते तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो क्या हो जाता, वो VA इज इक्वल टू ये हो जाता -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R वोल्ट। दैट मीन्स यदि जो पॉइंट चार्ज है वो नेगेटिव हो तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो नेगेटिव होगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q इन एयर आर वैक्यूम। तो फ्रेंड्स ये हमारा अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं, वो सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। लेकिन यदि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हो और सभी पॉइंट चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी हो, तो चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो सभी पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सम करके हम प्राप्त कर सकते हैं। सपोज फ्रेंड्स हमारे पास मान लेते हैं कि Q1, Q2, Q3, Q4 इस प्रकार बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं और इन सभी की एक जो पॉइंट है वहाँ से डिस्टेंस है सपोज R1, R2, R3 एंड R4 इस प्रकार डिस्टेंस है। तो इन सभी पॉइंट चार्जेस के कारण जो पॉइंट है, किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालें तो इस इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालकर सभी का हम सम कर देंगे तो हमें उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और वो किस प्रकार होगी, मान लेते हैं कि वो पॉइंट ए ही है और पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है VA, तो दिस VA विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये K कब है, जब उसमें कोई उस मीडियम में रखा हो और जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो इस कंडीशन में ये हमारा वैल्यू हो जाएगी VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4 और इसी प्रकार और भी यदि पॉइंट चार्ज हैं तो उसको ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यदि इस पॉइंट चार्ज में कोई भी पॉइंट चार्ज यदि निगेटिव हो, मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट चार्ज नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ फार्मूला हमने लिखा है, ये हमने कैलकुलेट किया है, वहाँ पर ये नेगेटिव लिखा आएगा, ये नेगेटिव चार्ज होगी। तो इस प्रकार हम डिफरेंट पॉइंट चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको यदि हम जनरल फॉर्म में लिखें तो VA विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to N QI/RI। और फ्रेंड्स यहाँ ध्यान केवल ये रखना है कि यदि कहीं पर निगेटिव पॉइंट चार्ज है तो वहाँ पर चार्ज की वैल्यू साइन के सहित हम लिखेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स आइए हम आज की क्लास को एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स ये मोटिवेशनल कोट्स को स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अ मैन इज़ नॉट पुअर विदाउट अ मनी बट अ मैन इज़ रियली पुअर विदाउट अ ड्रीम एंड एम्बिशन। अर्थात कोई आदमी मनी के बगैर पुअर नहीं होती है, लेकिन यदि उसके पास ड्रीम और एम्बिशन नहीं है तो रियली वह पुअर होती है, गरीब होती है। एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग।